Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. I hope you are all safe and sound in your homes. So today is our lecture number 5 and let we have started our work. So this is basically our page number 13 as I am going to teach you page number 12 and we are going to study page number 13. Here it is the masculine feminine of our summer vacation task. So the first word is man and the feminine of man is woman. WOMAN. Woman, boy, girl, father, मदर. जो उर्दू में मुज़क्कर मोनस होते हैं, इंग्लिश में ये मैस्कुलिन फेमिनिन है. ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, nephew, niece, NIECE, son, daughter, king, queen, husband, wife, bull, cow, cook, hen, horse, mare, lord, lady. So we have completed this masculine feminine. Put one line under the masculine nouns and a circle around the feminine nouns in these sentences. जो आपको sentences दिए गए हैं उसमें जो masculine है उसके नीचे line लगानी है और जो feminine है उसके इर्द circle करना है. बाबर was a great king. Obvious सी बात है, बाबर सबसे पहले तो ये एक नाम है, ये मैस्कुलिन नाम है, इसीलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे. वॉज अ ग्रेट किंग, ऑल्सो मैस्कुलिन. फार्मर एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड. फार्मर लड़का है, अंडरलाइन. वाइफ लड़की है, सर्कल. ही विश टू बाय अ फ्यू काउज एंड अ बुल. काउज फेमिनिन है, सो सर्कल. बुल मैस्कुलिन है, अंडरलाइन. द वुमेन एंड हर डॉटर वॉश द क्लोथ्स. वुमेन फेमिनिन है, सर्कल. And her daughter feminine has circle, wash the clothes. The rich man masculine owned many horse and mares. Horse masculine, mares circle. My uncle masculine called to see my father, underline. She told her husband masculine that their son will ill, underline. Ali and his sister were angry. Ali underline, sister circle, were hungry. The aunt circle looked after her nephew underline, niece circle. He said that the lady was his mother. Lady circle, mother obviously circle. Neuter gender, that is neither masculine or feminine. The names of all things about life are of neuter gender as pen, ink, river, house. कुछ न्यूटर जेंडर होते हैं जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होता, उनको एज इट इज़ ही हम लिखते हैं. कॉमन जेंडर होते हैं नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ द ईदर मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल्स आर ऑफ द कॉमन जेंडर एज चाइल्ड, पेरेंट, बर्ड. ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन जेंडर भी होते हैं जिन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम एज इट इज़ ही लिखते हैं. ओके, पुट अ लाइन अंडर द नाउन्स ऑफ न्यूट्रल जेंडर एंड सर्कल राउंड नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर इन दीज सेंटेंसेस. ठीक, ओके. फर्स्ट है जो लाइन लगानी है आपने न्यूट्रल जेंडर के नीचे और सर्कल करना है आपने कॉमन जेंडर्स को. ठीक है. अ बर्ड फ्लू आउट ऑफ द बुश. अब देखें, जो बर्ड है उसका कोई भी फेमिनिन नहीं हो सकता, जैसे कि ये ऊपर आपको एग्जांपल में भी दिया गया है, तो हम इसके गिर्द सर्कल कर देंगे. द माउस एट द ब्रेड अंडर द टेबल. अंडर द टेबल, तो टेबल को तो हम बिल्कुल भी इसका फेमिनिन नहीं बना सकते, तो ये न्यूट्रल जेंडर हो गया. सो वी ड्रॉ एंड लाइन ओवर देयर. द चाइल्ड क्लोज्ड द डोर. चाइल्ड कॉमन जेंडर, circle, door neuter. A page of book was torn. Page neuter, book common gender. The servant carried the baby. Baby common gender,
सर्वेंट कॉमन जेंडर। ठीक, सो वी हैव कंप्लीट अवर पेज नंबर 13. टर्न टू पेज नंबर 14. So here we are on page number 15. Story the hen which laid golden eggs. स्टोरी आपने लिखनी है ऐसी मुर्गी के बारे में जो कि एक सोने का अंडा देती थी। ठीक है, आउटलाइन आपको स्टोरी की दे दी गई है, आपने स्टोरी कंप्लीट करनी है। चलिए फॉर क्लास मेरे साथ साथ लिखते जाएं। स्टार्ट करते हैं। Once a man had a strange hen. It laid a golden egg daily. The man was very happy. He was greedy also. He wanted to become a rich man. He wanted to become a rich man. वो एक बहुत अमीर आदमी बनना चाहता था। But he was too impatient to wait for several months. लेकिन वो बहुत से महीनों के इंतज़ार करने का बेसब्रा था। टू इम्पेशेंट जिसको बिल्कुल भी सब्र ना हो कि वो बहुत से महीनों का इंतज़ार करे। He decided to kill the hen in order to get all golden eggs. He killed the hen and was bitterly disappointed to know that there was only one egg. He repented over his folly. ठीक, moral, it is useless to cry over spilt milk. सो वन मोर टाइम मैं आपको सारे पढ़ के सुना देती हूँ। वंस मैन हैड अ स्ट्रेंज हैन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी के पास एक अजीब सी मुर्गी थी। इट लेड अ गोल्डन एग डेली, वो हर रोज़ सोने का अंडा देती थी। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, आदमी बहुत खुश था। ही वॉज ग्रीडी ऑल्सो, वो लालची भी था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ रिच मैन, वो बहुत एक अमीर आदमी बनना चाहता था।
बट ही वॉज टू इम्पेशेंट टू वेट फॉर सेवरल मंथ्स, मगर इतना बेसब्रा था कि कई महीनों तक इंतज़ार नहीं कर सकता था. ही डिसाइडेड टू किल द hen इन ऑर्डर टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स. वो उसने उस मुर्गी को कत्ल, उसने सोने के तमाम अंडे हासिल करने के लिए मुर्गी को कत्ल करने का कर देने का फ़ैसला किया. ही किल्ड द hen and was vitally disappointed. उसने मुर्गी को मार दिया और उसको हलाक कर दिया, और मगर ये जानकर उसे सख्त मायूसी हुई टू नो दैट देयर वॉज ओनली वन एग, कि वहाँ पर सिर्फ एक ही अंडा था. ही रिपेंटेड ओवर हिज फोली, वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछताया. मॉरल, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत. So we have completed our page number 15 and now turn to page number 16. Page number 16. नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. री राइट ईच सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. सेंटेंस आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लिखना है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल दी गई है, शी टुक पार्ट इन पेंटिंग कॉन्टेस्ट. इसको जब नेगेटिव बनाया है तो टुक चूँकि सेकेंड फॉर्म है इसलिए हमने इसको डिड नॉट में कन्वर्ट कर दिया है. तो शी डिड नॉट टेक पार्ट इन द पेंटिंग कॉन्टेस्ट. और जब हमने इसको इंट्रोगेटिव में बनाया है तो इंट्रोगेटिव में हमने डिड स्टार्ट पे लिख दिया है, डिड शी टेक पार्ट इन द पेंटिंग कॉन्टेस्ट. एज लाइक दिस आपने ऐसा ही करना है. अगर तो सेकेंड फॉर्म होगी तो आप डिड नॉट लगा देंगे, अगर तो फर्स्ट फॉर्म होगी या तो फिर डू और डज का इस्तेमाल होगा, और अगर विल या शेल होगा तो फिर आप वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म या फिर विल नॉट और शेल नॉट ही लगाएंगे. ओके. अकबर प्लेड फ्लूट एट द कॉन्सर्ट. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी गुड, डिड नॉट लिखें. अकबर डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड नॉट आ गया है. प्ले द फ्लूट एट कॉन्सर्ट. डन, फुल स्टॉप. उसके बाद इंट्रोगेटिव, डिड स्टार्टिंग पे आ जाएगा. डिड अकबर प्ले फ्लूट एट द कॉन्टेस्ट एंड क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है. नेक्स्ट इज़ द बॉयज़ विल बेट द ड्रम. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब विल या शेल आ जाएगा तो आपने यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव में विल नॉट लिखना है और इंट्रोगेटिव में विल स्टार्टिंग पे आ जाएगा. विल या शेल वाले सेंटेंसेस बहुत ईजी होते हैं. As you have seen, the boys will bet the drum. इसको will not, the boys will not bet the drum. And when we are going to make it interrogative, will the boys bet the drum and also question mark. Next is they go to their office daily. go चूँकि फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ पे ऑब्वियसली they के साथ do आता है. they do not go to their office daily. Here it is, they do not go to their office daily. Do they go to their office daily? And last is question mark. Next is Aslam does his homework daily. असलम चूँकि एक लड़का है तो उसके साथ does ही होगा यूज़, तो हम यहाँ पे लिख देंगे असलम does not do his homework daily. Aslam does not do his homework daily. एंड नेक्स्ट इज़ डस असलम डू हिज होमवर्क डेली. एक बात हमेशा याद रखें, जब भी किसी का नाम आ जाता है तो हम उसको फर्स्ट उसका अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में लिखते हैं. इसलिए अगर वो नाम दरमियान में भी आ रहा है तो हम उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. दिस इज़ द कैपिटलाइजेशन. ओके. नेक्स्ट इज़ आसिफ डिड हिज होमवर्क यस्टरडे. दिस इज़ द पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पे बना देंगे आसिफ डिड नॉट डू हिज होमवर्क यस्टरडे. So here it is, Asif did not do his homework yesterday. Did Asif do his homework yesterday? Next is number 6. Zara will buy a new book again. Most easy. Zara will not buy a new book. Will Zara buy a new book? Zara will not buy a new book. Will Zara buy a new book? Sorry, that's my mistake. Z is in capital letter. Okay, next is I buy candies home the tuck shop. I buy candies home the tuck shop. This is basically a present tense. तो यहाँ पे I के साथ, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे था, यहाँ पे they go to their office daily, तो they था तो इसलिए हमने do यूज़ किया था. यहाँ पे I है, I के साथ भी do यूज़ ही होगा. I, we, they, you, इन चार चीज़ों के साथ do यूज़ होता है और he, she, it के साथ does यूज़ होता है. उसी तरह जैसे I, we, they, you के साथ do यूज़ होता है तो जितने भी प्लूरल्स होते हैं वो do ही यूज़ करवाते हैं. और अगर आ जाए ही, शी, इट तो उनके साथ सिंगुलर को मिला दिया जाता है तो उनके साथ डज यूज़ होता है. सो
Here this is done. I do not buy candies home the tuck shop. Do I buy candies home the tuck shop and question mark. So we have completed our page number 16. Let me tell you one thing that page number 17 मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक दफ़ा कि आपने इसको करके आना है, तो मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को करवा देती हूँ क्योंकि मैं ये होमवर्क वैसे दे चुकी हूँ. देख लें आप गौर से. हैंड का आपने राइमिंग वर्ड लिखना है, साउंड सेम होनी चाहिए. बैंड भी लिख सकते हैं, सैंड भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है. कोट का राइमिंग वर्ड मैंने बनाया है बोट. लाई का राइमिंग वर्ड टाई. ट्रिक का राइमिंग वर्ड ब्रिक. काइट का राइमिंग वर्ड बाइट. ग्रेट स्पेलिंग ट्रीट. डिड रेड. स्लिट फ्लेट. ड्रेस प्रेस. कर्ट हर्ट. प्लीज़ रिलीज. hills bills. Okay, our page number 17 is going to be done. We have completed our lecture number 5, our summer vacation task. I hope you all have understand all the concepts I am going to tell you. ये देखें हमारा सारे का सारा जितना भी summer vacation है वो complete हो चुका है. As you all see this that we had completed. Alhamdulillah. सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.